Now, what are the negotiable instruments? To understand the negotiable instrument, initially we have to understand the structure of the banks and why the negotiable instruments are so much important in banking industry. So, negotiable instruments need three types of things. The first is what is negotiable act. These are the types of negotiable instruments. So they are being used in the banking industry to negotiate your payments. And what is negotiable instrument act? The negotiable instrument act will tell you the importance why we need to negotiate in the monetary or in the banking industry. So before starting the topic, we need to understand the basic and the core. What do you mean by the banking structure? So, what is banking structure? As we all know, banking structure defines what? Lending of the payment, and what else? Accepting the payments, and what else? Fixing your funds for the future course of action. So these are the things that are being already taken under the Indian Banking System Act. This act is not the direct part of your syllabus, but before understanding the Negotiable Instrument Act, you have to understand the banking system of the India. So banking system of the India is being divided into the economic framework that is like scheduled banks and non-scheduled banks. Okay, now these schedules and the non-scheduled banks are again classified under the commercial banks, cooperative banks, development banks, and the different banks. There are few NBFCs also. NBFCs are the non-banking financial institutions. So we have to deal with these one by one. Then only we can take our next topic, that is negotiable instrument. So coming to the scheduled banks, the definition is very simple. The scheduled banks are under the banking system whose India refers to the financial institutions, and they are listed in the second schedule of RBI Act of India, that is 1934. They are meeting the specific requirements and the criteria of the RBI so that they can run a proper payment system. They have to pay the per capita income should not be less than 5 lakhs, and they satisfied all the norms of the RBI. So these are the scheduled banks. Scheduled banks वो होते हैं स्टूडेंट्स जो RBI एक्ट के सारे नियम और कानून को फॉलो करते हैं. There are the few non-scheduled banks. हाँ, इसमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक ये भी है कि शेड्यूल्ड बैंक अगर हम बन जाते हैं तो हमको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं. ठीक, ये बहुत ही कोर टॉपिक है बैंकिंग इंडस्ट्री का, लेकिन एज एन ले ऑफ स्टूडेंट्स, एज एन लॉ स्टूडेंट्स आप ये समझ सकते हैं कि जो आरबीआई से लेंडिंग्स होती है, जो आरबीआई या क्लियरिंग हाउस के बीच में लेंडिंग्स होती है, वो फैसिलिटीज हमको मिल सकती है. नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स वो हो जाते हैं जो कि उस क्राइटेरिया को मीट नहीं करते हैं जो क्राइटेरिया शेड्यूल्ड बैंक के अंडर में आता है. सो शेड्यूल्ड बैंक का अपना एक्ट है, दैट इज एक्ट नोन एज आरबीआई एक्ट 1934. और अगर आप नॉन शेड्यूल्ड हैं तो दैट मींस कि आपने कोई ना कोई एक्ट के अंदर नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया है. So what is the basic difference between the scheduled and the non-scheduled bank? So this is the only basic difference between the scheduled and the non-scheduled banks. ये नहीं बताया कि कौन सा नहीं करा है, पर yes, there are few things जो अभी आपने अच्छे से मेंशन नहीं करी हुई है. Clear to everyone? For your further course of action, अगर आपको लगता है you feel this is very important, तो I am just fixing this below the basic things. Okay, so from here only, from your notes only,
आपको ये प्रॉपर चीज दोबारा से मिल जाए। इसको आपको फाइनेंस के स्टूडेंट्स की तरह नहीं पढ़ना है, लेकिन हाँ आपको ये जरूर समझना है कि बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में इनकी रिक्वायरमेंट होती है। अगेन मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज नोन एज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है? देखिए ये सबको पता है, एवरीवन इज नोइंग कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही हमारा एपेक्स बॉडी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही हमारे यहाँ रेगुलेटरी चीजों को मैनेज करता है, यही हमारे लिए प्रिंसिपल है, हम इसी की बातें मानते हैं। यही सब कुछ इशू करता है, यही कंट्रोल करता है, यही सप्लाई करता है और यही सारी चीजों को मेंटेन भी करता है। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसके अपने बेटा फंक्शंस होते हैं, उसकी अपनी रिक्वायरमेंट्स है, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पढ़े बिना आप ये टॉपिक कवर नहीं कर सकते। ठीक, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहाँ एडिशनल टॉपिक मैंने नोट डाउन करा है सो दैट आपको ये क्लियर रहे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द एपेक्स इंस्टीट्यूशन, इट इज ऑलरेडी ओन्ड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ द फाइनेंस and it is the regulatory body who is responsible for Indian banking structure to control, to issue and to maintain the money supply in the Indian economy. Then coming to the next topic, ये कह रहे हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर कौन से 3 तरह के बैंक हैं? कमर्शियल, कोऑपरेटिव, डेवलपमेंट एंड द डिफरेंट बैंक्स। नाउ व्हाट आर द कमर्शियल? कमर्शियल बैंक्स वो होते हैं बेटा जो आपसे पैसा लेते हैं और उसको कमर्शियली यूज करते हैं। फॉर एन एग्जांपल आपका सेविंग अकाउंट खोल देंगे, करंट अकाउंट खोल देंगे, आपको लोन दे देंगे, आपका म्यूचुअल फंड कर देंगे। सो दे आर दी कमर्शियल बैंक्स, ओके, से दे आर कमर्शियली रिलेटेड टू यू। अब हम कैसे कहते हैं कि हमको रिक्वायरमेंट है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की? फॉर एन एग्जांपल आपने बैंक को चेक देना, तो चेक क्या है? चेक इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। आपको अपने बच्चे की फीस पे करनी है, तो जो आप फीस पे करते हो ये क्या है? ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। किसी बच्चे के मन में आ सकता है कि हम तो ऑनलाइन पे कर देंगे, हम तो जी पे से पे कर देंगे, लेकिन जी पे भी कहां से मनी फेच कर रहा है? वो भी तो बैंक से ही मनी फेच कर रहा है और दूसरे के बैंक के अकाउंट में मनी को डिपॉजिट कर रहा है। आपने पेटीएम यूज करा तो भी तो आपने भीम ऐप का यूज करा, क्योंकि वो भी तो आपके अकाउंट से पैसा ले रहे हैं और दूसरे के अकाउंट में पैसा डाल रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ई कॉमर्स ओनली, लेकिन आपने इस सिस्टम का तो यूज करा ही है। तो ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं बेटा कमर्शियल बैंक्स। नाउ व्हाट आर द कोऑपरेटिव बैंक्स? कोऑपरेटिव बैंक्स वो होते हैं जिनका ऑपरेशंस या जिनके प्रिंसिपल पूरी तरह से कोऑपरेटिव सोसाइटी गवर्न करती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है इनके बैकएंड में। दे आर रेगुलेटेड एंड मॉनिटर्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन कोर लेवल पे दोनों ही जगह आप बेसिक काम कर ही सकते हैं। कोऑपरेटिव बैंक में भी आप एफडी बनवा सकते हैं, लोन करवा सकते हैं और अपना अकाउंट भी ओपन करा सकते हैं। नाउ व्हाट आर द डेवलपमेंट बैंक्स? देखिए डेवलपमेंट बैंक सिर्फ हमारे लिए काम नहीं करते हैं, ये दूसरे बैंक्स के लिए भी काम करते हैं। सो दे आर वर्किंग नॉट फॉर अस ओनली, दे आर वर्किंग फॉर अदर्स आल्सो। फॉर एन एग्जांपल आईडीएफसी, अगर आप आईडीएफसी का एग्जांपल लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये पहले बहुत सारे लोगों की हेल्प करता था। एचडीएफसी बैंक डेवलपमेंट बैंक में आने लगा है धीरे धीरे, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशन इंडियन इंस्टीट्यूशन की इकोनॉमिक सेक्टर को बहुत ज्यादा लीड करता है ना। तो हम इस तरह से ये चीजों को समझ सकते हैं कि डेवलपमेंट बैंक सिर्फ हमें ही हेल्प नहीं करते हैं, ये दूसरे बैंक्स को भी हेल्प करते हैं। ये शॉर्ट टर्म लोन्स में बिलीव नहीं करते हैं, ये लॉन्ग टर्म लोन्स भी प्रोवाइड करते हैं और ये हमारे इंडिया के इकोनॉमिक सिस्टम को भी सपोर्ट कर रहे हैं। अब वो कहता है कि क्या कुछ और बैंक्स भी होते हैं? यस, वेरी ट्रू, कुछ और बैंक्स भी होते हैं। वो क्या करते हैं? वो आपके और मेरे लिए काम नहीं करते हैं। दे आर नॉट वर्किंग फॉर अस। नॉर्दर्न, वैसे सदर्न भी होता है, लेकिन मैं नॉर्दर्न रेलवे बैंक की बात कर रही हूँ, जिससे कि आपके सामने बिल्कुल क्लियर इमेज आ जाए। आपको लगता होगा कि ये कैसे काम करते हैं। नॉर्दर्न रेलवे बैंक्स बेटा, जो रेलवे में लोग काम करते हैं उनको स्पेशल डिस्काउंट्स देते हैं।
नॉर्दर्न रेलवे बैंक्स का रिक्रूटमेंट आता है, ठीक है। नॉर्दर्न रेलवे बैंक्स उनको अलग से लोन देने में, उनकी बैंकों में हेल्प करने में बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है, ठीक। तो इंडिया में बहुत सारे ऐसे कोऑपरेटिव बैंक्स हैं जो कि नॉर्दर्न रेलवे कोऑपरेटिव बैंक्स भी कहलाते हैं। देखिए आगे आपके सामने लीजिए, ये पोस्ट का देखिए, नॉर्दर्न रेलवे बैंक्स नॉन इंटरेस्ट, नॉर्दर्न रेलवे बैंक्स लिमिटेड। ये आप ध्यान से देखा करिए, व्हेनेवर यू आर मूविंग ऑन द रोड, देखिए आपके शहर में ही कहीं ना आपको दिख जाए नॉर्दर्न रेलवे बैंक्स। वहीं मिलेगा बेटा जहां पे रेलवेज है, जहां पे रेलवेज का सेक्टर है। देखिए मैंने रेलवे कहा, इसका मतलब ये बिल्कुल मत समझिएगा कि रेलवे स्टेशन है। देखिए रेलवे स्टेशन तो हर जगह होता है, लेकिन वहां पे क्या है, लूप है। जैसे इन मुरादाबाद वी आर हैविंग दिस फैक्ट बिकॉज कि यहाँ पे इंडिया का सबसे बड़ा रेलवे है, यहाँ सबसे बड़ी मैपिंग होती है, यहाँ से ऑल ओवर इंडिया की हर जगह की ट्रेन आपको मिल सकती है। देन तो इनको हम कहते हैं नॉर्दर्न रेलवे बैंक्स, ओके। तो इस तरह से भी इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं बेटा, जो सिर्फ हमारे लिए ही नहीं होते हैं, वो दूसरों के लिए होते हैं। इनको ट्रेडिशनल बैंकिंग में भी ले जाया जा सकता है। आप इनको एनबीएफसीज के तौर से भी देख सकते हैं। एनबीएफसीज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं, लेकिन काम करती हैं, पैसा देती हैं, पैसा लेती हैं, आरबीआई से भी गवर्न होती हैं, सेबी इनको अच्छे से गवर्न करता है, ठीक है। तो देयर आर एनबीएफसीज कंपनीज आल्सो। एनबीएफसीज कंपनीज भी पूरी तरह से आरबीआई ही देखता है, इनका भी सब कुछ मेंटेन किया जाता है, फ्लो ऑफ करेंसी, डिमांड ऑफ करेंसी, डिपॉजिट्स ऑफ करेंसी। लेकिन ये आपसे नहीं ले सकते, आप ये नहीं कह सकते कि मैम मैं इसमें एफडी खुलवा दूं, आप इसमें एफडी नहीं खुलवा सकते, ठीक। तो इसीलिए इनमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का यूज बहुत नॉमिनल। क्यों नॉमिनल होता है बेटा? क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शंस इसमें हाई नहीं है। वी आर मूविंग टू द फुल फ्लेश्ड टॉपिक दैट व्हाट डू यू मीन बाय नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1981। तो हमने इस चीज को समझ लिया है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कहाँ काम करता है, जहां जहां नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। अब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? जिनकी हेल्प से हम चीजों को एक से दूसरे को ट्रांसफर कर पाए। और वो क्या ट्रांसफर होता है? दैट इज पेमेंट, मनी, डिमांड लेटर, डिमांड ड्राफ्ट। These are the few examples of the negotiable documents. Definition read out करते हैं। Negotiable Instrument Act 1981 is a legal statute intact in India to govern the use and the characteristics of negotiable instruments. Negotiable instruments are the documents that guarantees the payment of the specific amount of money either on demand or at the set time in the future. वो आपको स्पेसिफाई कर रहे हैं कि फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन में इस दिन इस वक्त हम ये पैसा आपको वापस करेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने कोई एफडी कराई, ठीक है, इन द केस कि आपने कोई, तो सेम एग्जाम्पल दे आर आल्सो टेकिंग कि इनका जो फ्रेमवर्क होता है वो ऑलरेडी फिक्स्ड होता है। दैट दिस पार्ट इज फिक्स्ड कि कब क्रिएट होना है, कब ट्रांसफर होना है, कब रीइंफोर्स होना है, किस तरह से रीइंफोर्स होना है, क्या अमाउंट रीइंफोर्स होगा। की प्रोविजंस ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1981। सबसे पहली चीज हमें देखनी है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की क्या डेफिनेशन है। The Act defines negotiable instrument and outline the various types of recognized under the law, including the promissory note, bills of exchange and the checks. ये खुद ही डिफाइन कर रहा है, ये खुद ही आउटलाइन कर रहा है कि कैसे कैसे promissory note, bills of exchange और checks काम करते हैं। Then point number 2. Point number 2 है आपकी characteristics of the negotiability. The Act specifies the essential characteristics that makes an instrument negotiable, such as the ability to transfer by the endorsement and deliver the right of the holder in due course. यहाँ आपने क्या क्या मेंशन कर लिया? यहाँ आपने मेंशन कर लिया कि क्या टाइम था, ओनर कौन है,
किसके नाम पे है, किसके खाते से पैसा निकलेगा, बेयर पेइंग मतलब किसके पास जाएगा, टू whom फंड इज ट्रांसफर, टू whom फंड इज ट्रांसफर, कि ये इनके पास पैसा जाए। क्लियर टू एवरीवन। तो हमें इस पार्ट से ये चीज बहुत अच्छे से पता चल जाती है कि कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो उसमें सारी ही चीजें क्लियरली डिफाइंड होती हैं। फॉर एन एग्जाम्पल डेट, समटाइम्स टाइम ऑल्सो, ओके, ओनर ऑल्सो, जिसको पैसा मिलना है, ठीक है, जिसके पास फंड जाना है, वो भी क्लियरली डिफाइंड होता है। ठीक है, तो यहां पे हमें ये समझ में आता है कि अगर फॉर एन एग्जाम्पल हम एक चेक का एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम एक चेक का एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो देखिए चेक में सब कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? सब्यसाची मुखर्जी। किसको पैसा मिलना है? जल्दी से सारे बच्चे अपने मन में सोच के बताएं। सब्यसाची को पैसा, कितना पैसा मिलना है? 57,000। कितना पैसा मिलना है? 57,000। अमाउंट देखिए, दो बार लिखा है। किसके खाते से निकल रहा है? झरना मुखर्जी। किसके खाते से निकल रहा है? झरना मुखर्जी। यहां पे डेट नहीं मेंशन है क्योंकि ये चेक की सारी डिटेल्स नहीं देना चाह रहे होंगे, लेकिन इससे हमको ये भी समझ में आ जाता कि किस दिन दिया गया। ओके, और हम अगर इसे बहुत ज्यादा बोल्ड करें तो हम ये बात अच्छे से देख पाएंगे कि आप लोग देखिए यहाँ पे ये भी है कि ये जो अकाउंट है ये HDFC का है और वेस्ट बंगाल की ब्रांच है। यहाँ पूरा एड्रेस लिखा हुआ है। तो आपको एक छोटे से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से बहुत सारी इंफॉर्मेशन पता चल सकती है। क्लियर? नेक्स्ट आ जाता है कि इन्होंने कैंसिल करा हुआ है, तो दैट मीन्स कि इन्होंने इसमें कैंसिल चेक का एग्जांपल लिया हुआ है। एक सैंपल चेक का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे बेटा ये। देन आप इसमें लिखेंगे कि किसको पैसा जाएगा, आप अपने साइन करेंगे, इसमें अमाउंट लिखेंगे, डेट लिखेंगे, साइन होके भेजेंगे और देखिए सब कुछ मेंशन है। तो इसी तरह से ये यहाँ पे कह रहे हैं इफ यू फील, मैं आपके फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन के लिए या फर्दर स्टडी के लिए इसको पर्टिकुलरली यहीं पे पेस्ट कर देती हूँ, सो दैट जब आप इसको पढ़ें तो आपको कोई दिक्कत ना आए, आप यहीं से सैंपल उठा सकें। आपको फटाक से याद आ जाए कि मैम ने मुझे ये सैंपल बताया था कि कोई भी प्रॉमिसरी नोट हो, कोई भी बिल ऑफ एक्सचेंज हो, कोई भी चेक हो, और यू कैन से कि कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो, उसमें सारी की सारी चीजें ऑलरेडी मेंशन होती हैं। द राइट्स एंड द लायबिलिटीज ऑफ द पार्टीज। तो एक्ट एस्टेब्लिश हुआ है फॉर द राइट्स एंड द लायबिलिटीज ऑफ द पार्टीज इन्वॉल्व इन द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स including the drawer and the drawee, payer and the payee, endorser. It outlines the obligation of the each party and the consequences of default and the dishonor. What do you mean by dishonor of this? Any other negotiable instrument has been dishonored. Rights and the liabilities of the parties. The Act established the rights and the liabilities of the party involved in the negotiable instrument. Now, यहाँ पे हमारे पास ये चार टॉपिक आ जाते हैं कि कौन कौन से लोग होते हैं। ठीक, अभी हमको चारों को बहुत अच्छे से समझना है कि कौन कौन से लोग ऐसे होते हैं जो कि हमारे लिए काम करते हैं। ठीक है, ड्रॉअर, ड्रॉई, प्लेयर एंड द इंडोर्सर। अब आप लोगों के लिए मैं हाथ ही हाथ ये आप लोगों के लिए सर्च कर दे रही हूँ सो दैट कि आप लोग को दिक्कत ना आए आगे चल के। हु इज द ड्रॉअर ऑफ द चेक? डन, बहुत आसान है बेटा। आगे देखिए, बिल्कुल भी कठिन नहीं है।
जिसके मेकर है जो बिल ऑफ एक्सचेंज का, ओके, ही इज द ड्रॉअर ऑफ द चेक। तो हमारे केस के हिसाब से कौन था ड्रॉअर, जल्दी से बताइए। झरना मुखर्जी इज द ड्रॉअर ऑफ द चेक। जो हमने पहले पढ़ा उसके हिसाब से जो झरना मुखर्जी है, शी इज द ड्रॉअर ऑफ द चेक, क्योंकि चेक उन्हीं के नाम पर बना हुआ है। ये आप लोगों के लिए एग्जाम्पल है एक तरीके से, सो दैट आपको ये याद रहे कि ड्रॉअर कौन होता है। हमने झरना मुखर्जी का एग्जाम्पल ऑलरेडी अभी लिया था। हु इज द ड्रॉई ऑफ द चेक, देखिए बिल्कुल इसका रिवर्स ही होगा, है ना। कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो आप लोगों को लगे कि यार ये मुझे समझ नहीं आ रही, तो अगर आप एक भी याद कर लेते हैं तो आपको दूसरी चीज वैसे ही याद हो जाती है। क्लियर। अब हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं, ड्रॉई ऑफ द चेक लिख देते हैं। तो ये ड्रॉई ऑफ द चेक में बताएगा कि जिसके नाम पे है, जिसके नाम पे है, that particular person is the drawee of the check। देखिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है इन्होंने यहाँ पे कि ड्रॉई ऑफ द चेक कौन होगा, देन इसका नेम है यहाँ पे, ठीक। ये देखिए यहाँ पे उन्होंने मेंशन करा हुआ है ऑलरेडी पॉइंट नंबर 2 पे कि इसको पैसा जा रहा है, ये पेई है, ये बैंक का नाम है, ये वो अमाउंट है, ये आपका चेक नंबर है, ये आपका कोड है, ये बुकलेट की सीरीज है, इन्होंने अमाउंट मेंशन करा हुआ है, ये खाता संख्या है, ये वो अमाउंट, और यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ द ड्रॉअर। सिग्नेचर ऑफ द ड्रॉअर क्या आ जाएंगे बेटा, देखिए जिसने चेक बनाया है। क्लियर। अब हम आ जाते हैं अपनी पुरानी डेफिनेशन पे, ड्रॉई ऑफ द चेक। हु इज द ड्रॉई ऑफ द चेक। तो चेक का ड्रॉई वो पर्सन हो जाएगा जिसने चेक लेने की कोशिश करी है। देन अब नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं हम लोग। ये कह रहा है पेई कौन है। अब हम अपनी सेम फोटो पे आ जाते हैं जिस फोटो से अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं कि पेई कौन है। हु इज द पेई ऑफ द चेक, है ना। अब यहां पे इन्होंने ये भी मेंशन करा, ठीक, कि ये जो है ही इज द पेई ऑफ द चेक। ओके। इंडोर्सर, इंडोर्सर तो आप सबको पता ही, इंडोर्सर वो व्यक्ति होता है जिसके लिए इंडोर्स किया गया होता है। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको ये सारी बातें बता रहा है कि कौन ड्रॉअर है, कौन पेई है, कौन इंडोर्सर है, ठीक। तो ये वो चार लोग होते हैं जो कि हमारे राइट्स और लायबिलिटीज में आते हैं, एंड दीज फोर आर दी पार्टीज। ओके। ये पार्टीज सिर्फ चेक की नहीं है, ये पार्टीज ऑल प्रोमिसरी नोट्स, ऑल कमर्शियल नोट्स, ऑल चेक्स, ऑल सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स, जितने भी तरीके के हमारे पास नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन सब की पार्टीज हैं, एंड दीज आर दी एग्जाम्पल्स। क्लियर। नेक्स्ट, नेगोशिएशन एंड दी इंडोर्समेंट। The act regulate the process of the negotiation and the enforcement of the negotiable instruments, including the requirement for the valid endorsement, the right of the subsequent holder, and the effects of the restrictive endorsement. Okay? अब ये यहाँ पे हमें क्या बता रहे हैं, ये हमको बता रहे हैं कि ये जो एक्ट है इसमें जो लोग हैं वो ये डिफाइंड कर रहे हैं कि क्या वैलिड एंडोर्समेंट होना चाहिए, who can be the next holder, who can be the restrictive endorser, and how the particular instrument is being to work. Clear? The next is representment for the payment. Okay? ये मतलब हुआ कि आज आपने वो पर्टिकुलर चीज दे दी है किसी को और आप ये चाहते हैं कि अब इसका पेमेंट टाइमली हो जाए,
जिससे कि हम उसको आगे अच्छे से मेंटेन कर पाए। क्लियर? तो यहाँ पे वो ये कह रहा है कि प्रेजलमेंट में डिसऑनर ऑफ द चेक भी हो सकता है। देन कैसे? ये अभी हमने बात करी कि माइट बी पॉसिबल कि चेक प्रॉपरली मेंशन ना हुआ हो, तो इन दैट केस इट बिकम दी डिसऑनर। Discharge and the payment. Discharge and the payment means the act addresses the discharge of the negotiable instrument, including the circumstances under which an instrument is deemed discharged and the consequences of the payment or the refusal to pay. अच्छा, अब आपको ये पता होगा कि रिफ्यूजल टू पे में भी पनिशमेंट इम्पोज्ड है। रिफ्यूजल टू पे कब कब हो सकता है? फॉर एन एग्जाम्पल, सिग्नेचर मैच नहीं कर रहे है ना, सिग्नेचर मैच नहीं हो रहे माय डियर स्टूडेंट्स। और क्या हो सकता है? टाइम लिमिट एक्सपायर हो गई है, ऑल्दो 3 मंथ 6 मंथ डिफर्ड करती है, लेकिन टाइम लिमिट यहाँ क्या हो चुकी है? एक्सपायर हो चुकी है। ठीक, या इट कुड बी द पॉसिबिलिटी कि जिसका अकाउंट है वो अकाउंट नंबर सही से मेंशन नहीं है। तो ऐसे कुछ भी हो सकता है। या फिर जो इन वर्ड्स आपने लिखा है एंड इट फिगर्स वॉट एवर यू हैव रिटन, वो मिसमैच है। सो इनमें से कोई भी केस होता है तो हमें उसमें ये समझ के मिलता है कि ये हमारा पेमेंट अच्छे से नहीं हो पा। ठीक, मूविंग टूवर्ड्स द लायबिलिटीज ऑफ द पार्टीज इन द केस ऑफ दिस। बहुत सही, आपका बिल्कुल करेक्ट एग्जाम्पल है बेटा ये कि क्या मेरी कोई लायबिलिटी है कि अगर जो मैंने पेनल्टीज, ऑब्वियसली द नेक्स्ट पार्ट इज पेनल्टीज। अगर हमारी लायबिलिटी है तो अगर लायबिलिटी है तो लायबिलिटी का नेक्स्ट क्या होना चाहिए? लायबिलिटी का नेक्स्ट पेनल्टी ही होना चाहिए, है ना, क्योंकि हमने अपनी लायबिलिटी को फुलफिल नहीं करा है तो हमारे ऊपर क्या आएगी? पेनल्टी आएगी। अगर आप पेपर में फर्स्ट टाइम नहीं क्लियर कर पाते हैं तो आप क्या करेंगे? आप बैक का फॉर्म भरेंगे, बैक का फॉर्म फ्री में भरेंगे या यू हैव टू से सम अमाउंट। कुछ अमाउंट आप पे करते हैं ना, तो दैट इज द पेनल्टी। पेनल्टी टू अगेन टू क्रिएट अ सेटअप फॉर योर एग्जाम, बिकॉज इनिशियली सेटअप पे करा जा चुका है, इनिशियली सब कुछ हो चुका है और आपने प्रॉपरली अच्छे से पढ़ाई नहीं करी है, तो अब दोबारा से आपके लिए सब कुछ हो रहा है, तो यू हैव टू पे सम अमाउंट। The Act provides the penalties of the offence related to the negotiable instrument, such as the dishonor or the fraudulent alteration. It has been established procedures for the reinforcement and the educations of the disputes. इन्होंने clearly define करा है कि आगे कोई disputes ना हो, just to stop the disputes, just to stop these things, penalty are being enforced by the government of India under the supervision of RBI, and that particular penalties are being written and being imposed under the Indian Negotiable Instrument Act 1981. Hence we can say that this proper act is being responsible for a student to understand each and every point of Negotiable Instrument Act. So this is the only act that defines, जहां पे हमको ये समझ में आता है कि दिस इज द ओनली एक्ट जो हमें राइट्स बताता है, हमारी ड्यूटीज बताता है और स्मूथ फंक्शनिंग में भी हेल्प करता है। फाइनेंशियल सिस्टम डजंट मीन बैंक्स ओनली स्टूडेंट। यहाँ फाइनेंशियल सिस्टम ये वर्ड मेंशन है, ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि सिर्फ बैंक्स के लिए ही गया, ठीक है, ये फॉरेन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी गया, ठीक है, ये म्यूचुअल फंड्स के लिए भी गया, ये जो सेबी से आप डील करते हैं ना, स्टॉक्स ट्रेड करते हैं, ये उनके लिए भी गया।
ये मनी मार्केट के लिए भी कह रहा है, ये कमोडिटी मार्केट के लिए भी कह रहा है। ठीक है, हर उस स्टॉक एक्सचेंज की बात करता है जहां पे फंड्स ट्रांसफर किए जाते हैं। फाइनेंशियल सिस्टम में आपकी मॉनेटरी पॉलिसी भी आती है, आपकी फिजिकल पॉलिसी भी आती है। तो फाइनेंशियल सिस्टम में ये बिल्कुल मत सोचिए कि सिर्फ बैंक्स ही है, फाइनेंशियल सिस्टम बहुतों को इंक्लूड करता है। तो ये सब सही से चले। यहाँ पे ई पेमेंट सिस्टम भी आता है जो आप स्टूडेंट्स दिन भर यूज करते हैं। यहाँ पे ई कॉमर्स भी आता है। जरूरी तो नहीं कि सिर्फ हम ही आपस में बात कर रहे हो, बैंक्स टू बैंक्स, इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन भी चीजें होती है कि नहीं? तो ये उनके काम की। तो ये हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि फाइनेंशियल सिस्टम में सब कुछ, सिर्फ बैंक्स ही नहीं है, लेकिन बैंक्स एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं, इसलिए बैंक्स को हम हाईएस्ट बॉडी पे रखते हैं। इसीलिए बैंक्स को कौन गवर्न करता है? आरबीआई करता है। तो हम जब ये पढ़ते हैं तो ये हमारी एपेक्स बॉडी की तरह डील करता है। तो बहुत ज्यादा इसमें कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। आरबीआई इसलिए बार-बार आ रहा है क्योंकि वो किसको पढ़ा रहा है? वो इंस्ट्रूमेंट्स को पढ़ा रहा है। इंस्ट्रूमेंट्स बैंक में इस्तेमाल होते हैं। बैंक्स को कौन देखता है? बैंक्स को कौन देखता है? बैंक्स को आरबीआई देखता है, उनको गवर्न करता है।